ہمارے YouTube چینل ختم نبوت فیت پر آنے والے تمام مہمان گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب ہیں، اور اس سے متعلق معلومات ہم آپ احباب سے شیئر کریں گے۔ ناظرین گرامی، مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے یہ خاندان الہی کہلاتا تھا، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید بردار تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا منصب حجابہ تھا، یعنی کعبہ کی کلید برداری اور تولید۔ اس منصب پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ دوسرا منصب رفادہ تھا، یعنی غریب حجاج کرام کی خبر گیری کرنا۔ یہ منصب خاندان نوفل کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حضرت حرس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ تیسرا منصب سقایا تھا، یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کا انتظام۔ یہ منصب خاندان ہاشم کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ چوتھا منصب مشورہ تھا۔ یہ منصب خاندان اسد کو حاصل تھا۔ یہ منصب پر یزید بن ربیعہ فائز تھے۔ پانچواں منصب دیات و مغارم تھا، یعنی خون بہا کا فیصلہ کرنا۔ یہ منصب خاندان امیہ کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ چھٹا منصب عقاب تھا، یعنی علم برداری۔ یہ منصب خاندان امیہ کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ ساتواں منصب قبا تھا، یعنی خیمہ و خرگاہ کا انتظام اور سواروں کی افسری۔ یہ منصب خاندان مخزوم کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ آٹھواں منصب سفارت و منافرت تھا، یعنی سفیر ہو کر جانا اور جن قبیلوں میں یہ نزاع پیش آئے اس کا فیصلہ کرنا۔ یہ منصب خاندان عدی کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ نواں منصب ازلام و اثار تھا، یعنی محکمہ مال کا انتظام۔ یہ منصب خاندان جمحہ کو حاصل تھا۔ اس منصب پر صفوان بن امیہ فائز تھے۔ 10واں منصب اموال تھا، یعنی محتمم خزانہ۔ یہ منصب خاندان سہم کو حاصل تھا۔ اس منصب پر حرس بن قیس فائز تھے۔ آغاز اسلام میں جو لوگ قریش کے رؤسائے اعظم تھے اور جن کی عظمت و اقتدار کا اثر تمام مکہ پر تھا، ان کے نام یہ ہیں: ابو سفیان بن حرب، حضرت معاویہ کے باپ ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ حرب فجار میں انہی کا باپ قریش کا سپہ سالار تھا۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کا بھتیجا اور اپنے قبیلہ کا سردار تھا۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، قریش کا رئیس اعظم تھا۔ آس وائل سہمی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، نہایت دولت مند، کثیر الاولاد اور صاحب اثر تھا۔ عتبہ بن ربیعہ امیر معاویہ کا نانا، نہایت شریف الطبع اور صاحب ریاست تھا۔ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ قریش کی مخالفت کا پہلا سبب یہ تھا کہ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی بت شکن کی یادگار، یعنی کعبہ 360 معبودوں پر مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، جنگ میں فتحیں دیتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا۔ قریش کی مخالفت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار و عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔
कुरैश का रईस आज़म हरब बिन उमैया था। चुनाचे हरब फजार में वही सिपा सलार आज़म था, लेकिन हरब के मरने के बाद उसका बेटा अबू सुफियान इस मनसब अजीम के हासिल करने की काबिलियत नहीं रखता था। इसलिए वलीद बिन मुगैरा ने अपनी लियाकत व असर से रियासत हासिल की। अबू जहल इसका भतीजा था और वो भी कुरैश में इम्तियाज़ रखता था। अबू सुफियान गो अपने बाप का मनसब न हासिल कर सका, लेकिन बनु उमैया के ख़ानदान का सरदार वही था। कबीला सहम में सबसे ज़्यादा बाअसर आस बिन वाइल था, जो नहायत दौलतमंद और कसीरुल औलाद था। कुरैश की अनान हुकूमत इन्हीं रऊसा के हाथ में थी और यही लोग थे जिन्होंने इस्लाम की सख्त मुखालिफत की। मसलन असवद बिन मुतलिब, असवद बिन अब्दुल यगूस, नज़र बिन अल हरस, उमैया बिन खलफ, अकबा बिन अबी मुईत इन्हीं लोगों के ज़ेरे असर थे। कुरैश का ये ख्याल था कि नबूवत का मनसब आज़म अगर किसी को मिलता तो मक्का या ताइफ के किसी रईस को मिलता। कुरैश की मुखालिफत का तीसरा सबब ये था कि कुरैश को ईसाइयों से बिलतबा नफ़रत थी, जिसकी वजह ये थी कि बादशाह हबश जो काबा के डाने को आया था ईसाई था। यही वजह थी कि कुरैश ईसाइयों के मुकाबला में पारसियों को ज़्यादा पसंद करते थे। ईरान और रोम की जंग में ईरानियों को फतह हुई तो कुरैश ने नहायत खुशी का इजहार किया और मुसलमान शिकस्ता हुए। चुनाचे ये आयत उतरी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि करीब के मुल्क में रूमी मगलूब हो गए, लेकिन ये लोग मगलूब होने के बाद चंद साल में फिर गालिब आ जाएंगे। खुदा ही को इख्तियार है पहले भी और पीछे भी, और तब मुसलमान अल्लाह की मदद से खुशी मनाएंगे। कुरैश की मुखालिफत का चौथा सबब ये था। एक बड़ा सबब कबाइल की ख़ानदानी रकाबत थी। कुरैश में दो कबीले नहायत मुमताज़ और हरीफ यकदीगर थे, बनु हाशिम और बनु उमैया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ज़ोर और असर से बनु हाशिम का पल्ला भारी कर दिया था, लेकिन उनके बाद इस ख़ानदान में कोई साहिब असर नहीं पैदा हुआ। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौलतमंद ना थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौलतमंद थे, लेकिन फ़याज़ ना थे। अबू लहब बदचलन था। इस पर बनु उमैया का इक़्तिदार बढ़ता जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ख़ानदान बनु उमैया अपने रकीब यानी हाशिम की फ़तह ख्याल करता था, इसलिए सबसे ज़्यादा उसी कबीला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। बदर के सिवा बाकी तमाम लड़ाइयाँ अबू सुफियान ही ने बर्पा की और वही इन लड़ाइयों में रईस लश्कर रहा। अकबा बिन अबी मुईत जो सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और जिसने नमाज पढ़ने की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोशे मुबारक पर ऊँट की उजड़ी लाकर डाली थी, अमवी था। बनु उमैया के बाद जिस कबीला को बनु हाशिम की बराबरी का दावा था वो बनु मखजूम थे। वलीद बिन मुगैरा इसी ख़ानदान का रईस था, इसलिए इस कबीला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालिफत की। अबू जहल की एक तकरीर से इस बयान की पूरी तस्दीक होती है। एक दफ़ा अखनस बिन शरीक अबू जहल के पास गया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है। अबू जहल ने कहा, हम और बनु अब्दुल मनाफ यानी आले हाशिम हमेशा हरीफ़ मुकाबिल रहे। उन्होंने मेहमानदारियाँ की तो हमने भी की, उन्होंने खून बहा दिए तो हमने भी दिए, उन्होंने फ़याज़ियाँ की तो हमने उनसे बढ़कर की, यहाँ तक कि जब तक हमने उनके कांधे से कांधा मिला दिया तो अब बनु हाशिम पैगंबरी के दावेदार हैं। खुदा की कसम हम इस पैगंबर पर कभी ईमान नहीं ला सकते। कुरैश की मुखालिफत का पांचवा सबब यह था कि कुरैश में सख्त किस्म की बदअखलाकियाँ फैली हुई थीं। बड़े बड़े अरबाब इक़्तिदार नहायत जलील बदअखलाकियों के मरतकब थे। अबू लहब जो ख़ानदान हाशिम में सबसे ज़्यादा मुमताज़ था, उसने हरम मोहतरम के ख़जाना से अज़ाल ज़री चुरा कर बेच डाला था। अखनस बिन शरीक जो बनु ज़हरा का खलीफ और रऊसाए अरब में शुमार किया जाता था, नमाम और कज़ाब था। नज़र बिन हारिस को झूठ बोलने की आदत थी,
इसी तरह अक्सर अरबाब जा मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल शनीगा में गिरफ्तार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बुत परस्ती की बुराइयां फरमाते थे और दूसरी तरफ इन बद इखलाकियों में सख्त दारोगीर करते थे, जिनसे उनकी अज़मत व इक़्तिदार की शहनशाही मुतज़लज़ल होती थी। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और उस शख्स के कहने में ना आना जो बात बात में कसम खाता है, आबरू बाख्ता है, तान है, चुगलियाँ खाता है, लोगों को अच्छे कामों से रोकता है, हद से बढ़ गया है, बद है, तनखू है और इन सब बातों के साथ झूठा नसब बनाता है, इसलिए कि वो मालदार और लड़कों वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अलक में इरशाद फरमाया, वो सुन रखे कि अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, जो कि झूठी और खताकार है। और फिर सूरह मुदस्सर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमको और इसको तन्हा छोड़ दो, मैंने इसको अकेला पैदा किया, फिर बहुत सा माल दिया, बेटे दिए, सामान दिया, फिर चाहता है कि हम इसको और दें, हरगिज़ नहीं, वो हमारी आयतों का दुश्मन है। ये खिताब वलीद बिन मुगैरा के साथ है, जो कुरैश का सरताज था, और ये अल्फाज इस शख्स की ज़ुबान से अदा होते थे जिसको ज़ाहरी जाहो इक़्तिदार हासिल ना था, लेकिन मुखालिफत की जो सबसे बड़ी वजह थी और जिसका असर तमाम कुरैश बल्कि तमाम अरब पर यकसा था, ये था कि जो मबूद सैकड़ों बरस से अरब के हाजत रवाए आम थे और जिनके आगे वो हर रोज़ पेशानी रगड़ते थे, इस्लाम उनका नामो निशान मिटाता था और उनकी शान में ये कहता था कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में इरशाद फरमाते हैं, बिलाशुबा तुम और जिन चीज़ों को तुम खुदा को छोड़कर पूजते हो सब दोज़ख के ईंधन होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, हम अपनी अगली एपिसोड में कुरैश के तहम्मुल के असबाब और इससे मुतालिक मालूमात आप अहबाब से हम शेयर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जो इल्म मैंने आपसे बयान किया है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों में कायम रखते हुए, ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस इल्म के पैगाम को खुद सुनकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके आम करें। नाज़रीन गिरामी, हो सकता है हमारे इस अमल से और इस छोटी सी काविश से हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे अजीज़ो अकारब की, हमारे बच्चों की और आने वाली तमाम नस्लों की अल्लाह पाक के हजूर बख्शिश हो जाए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब अहबाब की परेशानियाँ, दुख, तकालीफ़, मसाइब, रुकावटें और वबाएँ दूर फरमाकर ईमान पर कायम सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।